برادری آج اپنا مذہبی تہوار ایسٹر منا رہی ہے۔ رواں سال کووڈ-19 کی وجہ سے ایسٹر سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ دعائیہ تقریبات ملتوی کر دی گئیں۔ پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ایسٹر سے قبل تنہا دعا کرائی۔ ملکہ برطانیہ نے ایسٹر کے پیغام میں کہا کہ سماجی دوری اختیار کر کے ہی ایک دوسرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے باعث مسیحی برادری کی ایسٹر کی خوشیاں ماند پڑ گئیں، لیکن مذہبی جوش و خروش کم نہ ہوا۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار ایسٹر سادگی سے منا رہی ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے گرجا گھروں میں اجتماعات پر پابندی ہے، لیکن مسیحی برادری کو آن لائن عبادات میں شرکت کی اجازت ہے۔ پوپ فرانسس نے ایسٹر سے قبل ویٹیکن میں سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں عوام سے کہا کہ خوف کا شکار نہ ہوں اور امید کے پیغام پر غور کریں۔ انہوں نے کووڈ-19 کے پیش نظر اکیلے دعا کروائی۔ ملکہ برطانیہ نے ایسٹر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ سماجی فاصلہ اختیار کر کے ہی ہم ایک دوسرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسٹر کو منسوخ نہیں کیا گیا، ہمیں آج ایسٹر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پہلے تھی۔ کورونا وائرس کے مہلک اثرات اور معاشی تباہی کے پیش نظر برطانیہ بھر کی 1,70,000 رجسٹرڈ فلاحی اداروں کے لیے 750 ملین پاؤنڈز کی خطی رقم کا اعلان کر دیا گیا۔ فلاحی اداروں کو ترجیحی بنیادوں پر 360 ملین پاؤنڈز سپورٹ فنڈ کی مد میں منتقل کیا جائے گا۔ چانسلر رشی سوناک کے مطابق چھوٹے فلاحی اداروں کو باقی ماندہ فنڈ ڈیمانڈ کے مطابق منتقل کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے وسیم کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں حالیہ کورونا وائرس کے مہلک اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ایسے فلاحی اداروں کے لیے 750 ملین پاؤنڈ کی خطی رقم کا اعلان کیا ہے، جو ادارے برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے برطانوی باشندوں کی مالی اور اخلاقی مدد میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چانسلر رشی سوناک نے اپنی تعیناتی پر حکومت برطانیہ کی جانب سے فلاحی اداروں کے لیے مختص سپورٹ فنڈ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں 750 ملین پاؤنڈ کی رقم ایسے فلاحی اداروں کے لیے رکھی گئی ہیں جو ادارے کمیونٹی میں روزمرہ استعمال کی اشیاء اور دیگر ضروریات کے حوالے سے دن رات اپنی فلاحی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے فلاحی اداروں کو سپورٹ فنڈ منتقل کرنے کے عمل میں نیشنل لاٹری کمیونٹی فنڈ برنٹ فارمولا کے تحت اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ کے اداروں کو منتقل کیا جائے گا، جبکہ ایسے ادارے جو بین الاقوامی سطح پر کورونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ فنڈ کا کچھ حصہ دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس فنڈ کا ابتدائی کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کا دائرہ کار اعلان کے مطابق بڑھایا جائے گا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملائیشیا میں پھنسے ہوئے 200 پاکستانیوں سمیت پاکستان میں موجود 250 ملائیشین شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز PK-895 200 پاکستانیوں کو ملائیشیا کے ہوائی اڈے سے لے کر روانہ ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی زیر نگرانی خصوصی ٹیم ہوائی اڈے پر موجود رہی۔ ملائیشین وزیر خارجہ داتو سری بشام الدین حسین نے پاکستانی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ملائیشیا میں پھنسے ہوئے 200 پاکستانی مسافروں سمیت پاکستان میں موجود 250 کے قریب ملائیشین شہریوں اور ان کے خاندانوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاکستان ہائی کمیشن ملائیشیا اور PIA کے CEO ایئر مارشل ارشد ملک کی کاوشوں اور حکومت پاکستان کی ہدایت پر PIA کی خصوصی پرواز PK-895 عورتوں اور بچوں سمیت 200 پاکستانی مسافروں کو ملائیشیا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے لے کر وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی زیر نگرانی ہائی کمیشن کے اعلیٰ حکام، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی غلام حیدر اور ویزا آفیسر محمد افضال طاہر پر مشتمل خصوصی ٹیم مسافروں کی بورڈنگ پاس ایشو ہونے سے جہاز میں سوار ہونے تک ہر مرحلے پر ان کی معاونت کے لیے کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود رہے۔ پاکستان روانگی سے قبل مسافروں نے وزیر اعظم پاکستان، PIA اور خاص طور پر پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کا اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ 21 سے ہم یہاں کوالالمپور میں ایمبیسی کے مہمان ہیں، انہوں نے ہمیں بہت اچھا ہاسپٹیلٹی دی ہے، بہت اچھا پروٹوکول دیا ہے ہمیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ ایمبیسیڈر آف پاکستان طاہر بھائی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا۔ ہماری ایمبیسیڈر ہیں امینہ بلوچ صاحبہ، انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ میں آج بہت ہی مشکور ہوں اپنے پاکستان ہائی کمیشن ملائیشیا کا، جنہوں نے ہمیں
हिफाजत में रखा और हमें होटल प्रोवाइड किया और फूड दिया, बहुत अच्छा खाना। मुख्तर मुद्दत के सियाहती वीजे पर मलेशिया आए ये पाकिस्तानी मुसाफिर कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया जाने पर मलेशिया में फंस गए थे। गुज़श्ता 3 हफ्तों से इन तमाम मुसाफिरों के होटल्स और खाने के अखराजात की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर ने उठा रखी थी। एयरपोर्ट पर मौजूद PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब का कहना था कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंस जाने वाले 250 के करीब मलेशिया के शहरी भी इस प्रवास के जरिए आज अपने वतन मलेशिया पहुंच जाएंगे। गुज़श्ता दिनों मलेशिया के वजीर खारजा दातू श्री हशामुद्दीन हुसैन ने अपने पाकिस्तानी हम मुंसब शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तान में फंसे हुए मलेशियन शहरियों को PIA की खसूसी परवाज में अकोमोडेट करें। रूस में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत रूस के दीगर शहरों में फंसे पाकिस्तानियों में राशन तकसीम किया गया। इस ऐसे इक़दाम पर उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। तफसीलात शाहिद घुम्मन की रिपोर्ट में। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कसीर तादाद में पाकिस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम हैं जो लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल तक महदूद होकर रह गए थे, जिन्हें पैसे खत्म होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अहकामात की रोशनी में पाकिस्तानी सफारत खाना की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद सराहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली और वज़ीर आज़म इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है। मैं इस वक्त सेंट्रल साइबेरिया के शहर टॉम्स में स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर पिछले 10 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त भी -10 टेम्परेचर है और अभी हमसे मॉस्को एम्बेसी पाकिस्तान ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की है और उसके लिए हम मॉस्को एम्बेसी पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। ड्यू टू आपको पता है कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो है कर्फ्यूज़ लग चुके हैं और मॉस्को के अंदर भी इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और ग्रोसरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और डोर टू डोर कैंपेन करके हमें ग्रोसरीज प्रोवाइड की हैं। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं मॉस्को में, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और आज पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमें राशन दिया है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर सब कुछ बंद हुआ था, हमारे घर से पैसे नहीं आ रहे थे, तो हम बहुत मशकूर हैं पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि मॉस्को में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के। रूस में कोरोना वायरस के फैलाव के लिए लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत मुल्क भर में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों का इस तरह ख्याल रखने और राशन फराहम करने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान, हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। मुत्तहदा अरब अमारात की मारूफ कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान और UAE समेत पूरी दुनिया बहुत जल्द इस मूजी वबा से छुटकारा हासिल कर लेगी। डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड में फ़ौरी 50 लाख रुपए अतिया करने का ऐलान भी किया था। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। तो मेरे तरफ से फौरी 50 लाख प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फंड में है। डॉक्टर बो अब्दुल्ला मुत्तहदा अरब अमारात की मारूफ कारोबारी शख्सियत जो हर आजमाइश के मौके पर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। गुज़श्ता रोज 92 न्यूज़ की जानिब से वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के हवाले से की जाने वाली टेलीथॉन में उन्होंने 50 लाख रुपए अतिया किए और मजीद भी मदद करने के अज़म का इजहार किया था। तो मेरे तरफ से फौरी 50 लाख प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फंड में है। 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि वो इमरान खान के इस अजीम मकसद की भरपूर हमायत करते हैं। वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से गवर्नर चौधरी सरवर से इनकी बातचीत जारी है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इसने ऐसे अच्छे कदम उठाया और मेरे तरफ से 50 लाख प्राइम इमरान खान को फ़ंड में मैंने डोनेट किए। मेरे काफ़ी प्लान है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो काफ़ी बात भी चल रही है गवर्नर चौधरी सरवर के साथ। वो हमेशा UAE की गवर्नमेंट, उसकी अवाम, हम पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश सब दुनिया को इस वायरस से नजात करे और हिफाजत करे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने के अज़म को भी दोहराया। I want to give best wishes
to PM Imran Khan for taking this step to help people in this time of coronavirus. And I donate 50 lakh in Imran Khan fund from our side. I pray and I hope that we will all be safe from coronavirus. हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बो अब्दुल्ला का मजीद कहना था कि यूएई की हुकूमत और अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ है। यूएई और पाकिस्तान का रिश्ता सदियों पुराना है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ वुसअत आ रही है। सैयद मुदस्सर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। थाईलैंड में महसूर फिल्म स्टार शमून अब्बासी ने हुकूमत से एक बार फिर मदद की अपील की है। कहते हैं फिल्म टीम के 21 अरकान के पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से निकाला जाए। इस वक्त मैं थाईलैंड के एक डिस्ट्रिक्ट माइंग कंचनाबुरी से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमें थाईलैंड में फंसे हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। जब हमें खबर मिली थी 21 मार्च को कि एयर स्पेस बंद हो रहा है और फ़्लाइट्स बंद की जा रही हैं पाकिस्तान की, तो हमसे कहा गया था कि 4 तारीख तक ये फ़्लाइट्स इसी तरह बंद रहेंगी। हमने 4 तारीख तक की अपनी अरेंजमेंट्स की। आपको फिर से बताता चलूँ, पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि हम लोग 21 लोग हैं जो यहाँ एक फ़िल्म के सिलसिले में मिड फैब में आए थे, और 3 से 4 एक्टर्स हमारे वापस जा चुके हैं 18 मार्च को, 4 एक्टर्स, और 21 लोगों का इस वक्त क्रू और एक्टर्स यहीं पर फंसा हुआ है। 4 तारीख से लेकर उसके बाद हमसे कहा गया कि ये फ़्लाइट 11 तारीख पर चली गई है। 11 तारीख से फिर कहा गया कि 13 तारीख को चली गई है। अब आज 11 तारीख है और हमें ये पता चल रहा है कि PIA ने फ़्लाइट्स को मज़ीद 1 हफ़्ता रोकने का फ़ैसला किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल हालात हैं, जिन हालात में इस वक्त 21 लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं। शहर में कर्फ्यू है, बैंकॉक में कर्फ्यू है। हम बैंकॉक से 3 से 4 घंटे के फ़ासले पर हैं, लेकिन यहाँ पे दुकानें भी बंद हैं और शदीद रिस्ट्रिक्शन है बाहर जाने पे। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, असद उमर साहब से, मोहित कुरैशी साहब से, PIA के एहलकार से ये रिक्वेस्ट है कि पूरी दुनिया में इस वक्त PIA की फ़्लाइट्स पाकिस्तानियों को लेने के लिए जा रही हैं। थाईलैंड का मामला अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा। हमने सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, एम्बेसी हमारे साथ इस वक्त लाइनअप है, लेकिन उनके पास भी कोई वाज़े जवाब नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट टू से। पिछले हफ्ते हमने काफ़ी सारी वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स में मैं ऑन एयर भी आया, लाइव भी किया, बुलेटिन में भी आया। मुझे लगा इस मामले को सीरियस लिया जाएगा। थाईलैंड का एयर स्पेस बंद होने वाला है। हमें अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है कि इन फ़्लाइट्स को कब खोला जाएगा और हमें थाईलैंड से, हमें और मज़ीद 200 लोगों को यहाँ से कब निकाला जाएगा। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।